Hello, everyone. So, I welcome you all in this economy session. It is going to be one of the very important session, जहाँ पे we will try to see the last 1 year के whatever have been the most important news uh, with related to economics. Those we are going to cover in the session. So, the session will comprise of two lectures, two parts में आएगा. All right. So, let us begin the first lecture. All right, so let us begin with the first news item. So first is windfall tax. All right, so what has been the news around the windfall tax? तो पहला था कि government has announced that it is going to scrap the windfall tax which was levied on the windfall profit which the oil companies were incurring. All right. तो एक वो था एंड दूसरा another context was that no the petroleum ministers has announced that no windfall tax on oil companies after a new law which will be coming. All right. So these two news article has been important. So let us understand कि windfall tax होता क्या है? What is the windfall tax? So context is that government has withdrew the windfall gain tax on the domestic production of crude oil, export of diesel, पेट्रोल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल इन सारी चीजों पे गवर्नमेंट हैज विड्रॉन द विंडफॉल टैक्स. All right. So let us see the most important points which we should know about the windfall tax. So, what is the meaning of windfall? So, try to understand that if a company wants to increase its profit, okay, then company has to do certain things. For example, let us say they are going for capacity expansion. They may go for increase in productivity. All right. So company has to do certain things with themselves in the company so as to increase their profit. Now imagine another situation, another scenario that company is able to generate profit. ऑल राइट, कंपनी में प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और एक्सेसिव प्रॉफिट जनरेट हो रहा है विदाउट डूइंग एनीथिंग ऑफ देयर ओन. So that is what is called as windfall. That is what is called as windfall. जो आपका प्रॉफिट हो रहा है that is much mainly due to some external factors rather than anything which you have done. कोई आपका एडिशनल एफर्ट खुद पे नहीं लगाया हुआ है. ऑलराइट, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन external event which has occurred which is leading to you a gain in profit. तो उसका ही मतलब होता है windfall. All right. So it is mean that it is unearned and anticipated gain in income. All right. वो आपने एंटिसिपेट नहीं किया था, उसके लिए आपने मेहनत नहीं की थी, उसके लिए आपने नो यू हैव नॉट डन एनीथिंग एफर्ट इन दैट डायरेक्शन. ऑलराइट, तो ये अनएंटिसिपेटेड होता है. तो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ विंडफॉल. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ विंडफॉल. तो जब कंपनी को विंडफॉल प्रॉफिट होता है, एक्सेसिव प्रॉफिट हो जाता है बिना किसी कारण इन द सेंस कि वो कंपनी ने खुद मेहनत नहीं की है बट इट इज मेनली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर. तो सरकार उसी विंडफॉल प्रॉफिट पे टैक्स लगाती है जिसको कहते हैं विंडफॉल tax. All right, that is what is called as windfall tax. So a windfall tax is a tax levied by the government on specific companies or industries that have experienced sudden, unexpected, or significantly above average profit. This has happened in 2022. ऑलराइट, क्या हुआ था? फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग कोविड डिमांड बहुत शिंक हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था. सो नो द डिमांड फॉर क्रूड ऑयल, पेट्रोल्स दैट हैव कम डाउन. बट आफ्टर द इकोनॉमी ओपनड अप आफ्टर द कोविड, तो डिमांड बहुत ज्यादा से बढ़ने लगी, तो प्राइसेस थोड़े इंक्रीज होने लगे. And then in 2022, what happens? रशिया यूक्रेन वॉर अकर्ड और जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे दैट स्काई रॉकेटेड. ऑलराइट, तो इट इंक्रीज्ड बियॉन्ड द $100 पर बैरल. और इसके वंस दिस हैपेंड, तो व्हाट वाज द
what was happening with the oil companies. So since sudden increase in the prices of crude oil led to sudden increase in their profits, all right, sudden increase in their profits. So उसी profit पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना चालू कर दिया था, that was called as windfall टैक्स. उसका रेशनले क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका एम क्या था? फॉर एग्जाम्पल, टू रीडिस्ट्रीब्यूट द अनएक्सपेक्टेड गेन्स which the oil refinery companies या oil companies were इनकरिंग, ऑलराइट, उनको तो रीडिस्ट्रीब्यूट करने की सरकार टैक्स लगाएगी, उससे सरकार को रेवेन्यू बढ़ेगा, एंड दैट रेवेन्यू सरकार गवर्नमेंट कैन यूज फॉर द वेलफेयर एक्सपेंडिचर. सो फंडिंग social welfare schemes or supplementing the revenue stream of the government. And when was the windfall tax introduced in the India? It was in the July 2022, jab Russia Ukraine war has occurred and the oil prices has skyrocketed. All right, it is imposed on profits, excess profits जो companies के बन रहे थे because of increase in the prices of the क्रूड ऑयल. इट इज इम्पोज्ड ऑन दैट. एक चीज और ध्यान रखेंगे, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ direct tax. It is paid by the oil companies who is generating the profit directly to the government. All right, that is what the idea. Another crucial aspect which you need to keep in mind is that these विंडफॉल टैक्स का जो रेट्स था, दैट वर रिवाइज्ड एवरी 2 वीक. ऑलराइट, दैट वाज रिवाइज्ड एवरी 2 वीक बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस. तो ये फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड. अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है? दे हैव कंप्लीटली विड्रॉन द विंडफॉल टैक्स ऑन द ऑयल्स. All right. So this is one of the very important thing. Another crucial news is regarding the equalization levy. All right, equalization levy. So what has been the few news that government proposes to abolish, all right, 6% equalization levy, which government was imposing earlier. So they plan ki we are going to abolish, we are going to withdraw this equalization levy. So India to abolish equalization levy on digital ads from April 1. All right, so let us see. So what is the context? That the government has proposed to abolish 6% equalization levy on online advertisement, which it was imposing from April 1, 2025. All right, April 1, 2025 से abolish कर दिया गया है equalization levy. So a few things related with equalization levy. So it was introduced in 2016. The government introduced equalization levy 2016. So what was the scenario back then? So the idea was here, equalization levy लाने का क्या purpose था, क्या reason था? During that time, several government or several Indian companies were having taking services, especially in the online digital platform, from the YouTube, from Meta, from Facebook, Twitter. उन सब पे ये अपने डिजिटल एड्स चलाते हैं, डिजिटल एड्स करते हैं. ऑलराइट, तो उससे द these companies, YouTube's, Facebook, Twitter, etc., they were generating profits. All right, they were generating profits, and these were the non-resident digital service providers. These were non-resident digital service provider, और उस समय they were having minimal presence in India. All right, so that is why the government said that no, you are generating profits in India, so you have to pay certain taxes. All right, that is what the idea ki because these companies were trying to show minimal profits in India. All right, so उस पे सरकार ने बोला कि since you are generating huge profits in India, so you have to pay certain taxes. So उसके लिए government has come out with the equalization levy. All right, equalization levy. Like, so here it was introduced in 2016, and the idea was that to tax profits generated by non-resident digital companies. All right,
non-resident digital companies such as Facebook, Meta, Twitter, etc. Who were providing services to Indian firms. Who were providing to services to Indian firms. और उसमें what was the rate? That was 6%. All right. So if an Indian company is taking services, digital services from non-resident companies, so that Indian company has to pay 6% as equalization levy tax to the government. All right. Actually, में YouTube Meta को देना था, but what was the system of doing it? Let us say, no, I am the company, I am giving, taking the services and I'm giving money to the YouTube. So I will withdraw or I will withheld the equalization levy of 6% and I will give it to the government, all right, directly. So this is what was the mechanism of giving the equalization levy to the government. All right. So that is how it was there. So rate is 6%. It was imposed on digital services. All right. It was imposed on digital services, for example, digital advertisement services, and the transactions should be greater than 1 lakh rupees in a financial year. Only then equalization levy was imposed. All right. So nature of taxation is here. It is a direct tax. All right. It is a direct tax. This equalization levy scope was expanded. This was expanded in 2022, where what the government did was that it introduced a 2% tax on non-resident e-commerce operator who were providing services to Indian users. तो यहाँ पे एक और लगा दिया था, that is 2% tax on non-resident e-commerce, but this was withdrawn in 2024. This was withdrawn in 2024, and finally the 6% equalization levy on online digital services, which online advertisement which government was imposing, they have also withdrawn this equalization levy. इसको basically क्यों किया सरकार ने? It was mostly because of जब the president of USA Donald Trump has threatened that the unilateral tariff will be imposed. So one of the reasons for India, revoking this equalization levy was this trade tensions between the USA. So trade tension between the USA. So these are few things जो important है in this equalization levy. All right. Another important news article is related with Securities Transaction Tax, that is STT. Securities Transaction Tax. So यहाँ पे context क्या है? Very recently there was a plea filed in the Supreme Court which challenged the constitutional validity of Securities Transaction Tax. All right, that is why this news becomes important. All right. So the Supreme Court of India has decided to examine a plea challenging the constitutional validity of Securities Transaction Tax. Now let us see some of the things related with Securities Transaction Tax. So what is the Securities Transaction Tax? So it is a tax which is levied by the government on buying and selling of certain securities on the recognized stock exchange. जब भी आप बाय या सेल कर रहे हैं certain securities, then you have to pay, आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, and this security transaction tax is imposed on that transaction. This is what the idea of securities transaction tax. So it is a kind of direct tax, all right, and it has been introduced in 2004. All right, it has been introduced in 2004. All right, तो purpose वहां पे क्या था? When it was introduced in 2004, what was the main purpose? To reduce the tax evasion. All right, one of the purpose was to reduce the tax evasion and then simplify capital gains taxation and ensure a transparent automated tax collection process. All right, so that is what the idea. So जब भी आप कोई transactions कर रहे होते हैं of the securities, the security transaction tax is imposed, and किस पे applicable है?
इट इज एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करते हैं जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की जब आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑलराइट, परचेज और सेल करते हैं, देन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. वन ऑफ द अदर थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड दैट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहाँ लगेगा? जब आप बाय और सेल कर रहे हैं सिक्योरिटीज ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल एनएससी, बीएससी एटसेट्रा. अगर आप ओवर द काउंटर नो मार्केट में कर रहे हैं, या नो अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे कर रहे हैं, देन इट विल नॉट बी इम्पोज्ड. सो कहां पे इम्पोज होता है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप you are buying and selling the securities, all right, applicable securities, all right. So it is levied by on both buyers and sellers of securities, दोनों के ऊपर ये लगता है, all right. Another, it is non-refundable mandatory charge applied regardless of trading profit or loss. So यहाँ पे one thing you keep in mind that security transaction tax is levied on transaction. जब भी यू आर बाइंग और सेलिंग, नो मैटर वॉट, आपका प्रॉफिट हुआ है, आपका लॉस हुआ है, इफ यू आर इंडल्जिंग इन ट्रांजैक्शन, दैट इज बाइंग और सेलिंग, यू हैव टू पे एप्लीकेबल सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. तो यहां पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को यू कैन सी इट फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, ऑलराइट, जहां पे यू हैव टू पे कैपिटल गेन टैक्स ओनली इफ यू हैव मेड प्रॉफिट, ऑलराइट. तो यहां पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन नो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट है कि लॉस है. So this important thing you have to keep in mind, all right. And the rate of security transaction tax is different for different securities. जो हमने different securities देखी कि equity shares है, futures है, options है, equity oriented mutual fund है, उस different securities के लिए जो rate of securities transaction tax है वो different है. So these things you have to keep in mind with regard to securities transaction tax. All right. Another important news, which is the recently passed Income Tax Act of 2025, now which is going to replace the earlier Income Tax Act of 1961. It is going to be effective from the next financial year, all right, from April 1, 2026. So Parliament has passed this bill, and it has also got the assent of the president, all right. So it will be effective from the next financial year, all right. So the parliament has passed the income tax bill of 2025, and president has given her assent to the same. It will be effective from 1st April of 2026, next financial year say, and it has replaced the existing income tax act of 1961. So ये बहुत what was the logic behind, what was the government saying behind कि why we need a new income tax act? तो एक जो सबसे बड़ा फैक्टर था which government has considered is complexity. बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था ये एक्ट. So common people, common taxpayer were not able to understand the legal language which was used. बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके थे, बहुत सारे इंसर्शन डिलीशंस हो चुके थे, जिससे ये एक्ट हैज बिकम वेरी मच कॉम्प्लेक्स. So one of the factor going for the new income tax act was to simplify the previous act. All right, simplification. So some of the key features जो हमारा income tax act of 2025 है. So one of the things which we have said that simpler language कि समझ में आना चाहिए common taxpayer को, common people का. Another is fewer sections, जो भी lengthy थे, जो भी जिनका काम नहीं था, जिनका यूज नहीं था, उन सारे सेक्शंस को डिलीट कर दिया गया है. So it will make it easier to understand and implement. That is the one thing. Second important thing is that try to understand that there has no major tax policy change. ऐसा कोई change नहीं हुआ. It's just that it has been reformed and revised and simplified. बस ये हुआ.
कोई ऐसा मेजर टैक्स पॉलिसी चेंज नहीं लाया गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत, एंड देयर हैज बीन नो मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स रेट, ये भी ध्यान रखिएगा, there has been no modification of tax rate. Another crucial aspect which government has tried to do with income tax act 2025 is that introduction of tax year. All right, तो अभी क्या था, if you see at present we were using two terms, एक assessment year होता था, एक previous year होता था. तो previous year, what does it mean? It means that year in which income is earned. All right, income is earned, and assessment year is the next year where the income is assessed and taxes are paid. And taxes are paid. तो इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि क्या असेसमेंट ईयर है, क्या प्रीवियस ईयर है, ऑल दोज थिंग्स बड़ा वो डिफरेंट रहता था. तो दैट इज वाई अब एक इन दोनों को हटा के एक सिंप्लीफाइड ला दिया गया है टैक्स ईयर. ऑलराइट, टैक्स ईयर. तो व्हाट इज द टैक्स ईयर? इट इज सिंपली द 12-month पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1st April. सिंपल. ऑलराइट, ये एक टैक्स ईयर हो गया. ऑलराइट, तो दैट इज व्हाट द आइडिया. ऑलराइट, तो क्या अब इससे थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कॉमन टैक्स पेयर को कि किस फाइनेंशियल पीरियड में हम क्या इनकम और क्या टैक्स फाइलिंग जो कर रहे हैं वो क्या फाइनेंशियल ईयर है. टैक्स ईयर सिंपल ला दिया. अर्लियर विच वर यूजिंग वाज प्रीवियस ईयर, जिसमें इनकम को अर्न कर रहे थे, एंड द नेक्स्ट ईयर जिसमें असेसमेंट ईयर बोलते थे, जिसमें असेस करते थे कि आपने जो भी इनकम अपनी लगाई है प्रीवियस ईयर की वो सही है कि गलत है, एंड अकॉर्डिंगली यू पे द टैक्सेस. सो उन दोनों को हटा के वी हैव गॉन फॉर द टैक्स ईयर. अनदर इज the act provide that power to frame a scheme resides with the central government. All right, resides with the central government. All right, so they can design new schemes which are aimed at to improve the efficiency, transparency. कोई अगर नया स्कीम लाना चाहते हैं तो central government can do it. All right. Another is सिंप्लीफाइड कंप्लायंस की बात कर रहे हैं. मल्टीपल प्रोविजंस जो भी थे उनको दे हैव कम टुगेदर, दे हैव बीन ब्रॉट टुगेदर फॉर मोर क्लैरिटी. राइट, तो जो भी एक सेक्शन या एक इशू से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस थे दैट हैव बीन क्लब्ड टुगेदर, की क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा रहे. फॉर एग्जांपल जैसे provisions related to tax deduction at source which were earlier distributed across multiple sections have now been brought together. तो एक सिंप्लीफाई कर दिया गया है so that compliance is easy. अगर समझ में आ रहा है तो आप कंप्लाई कर पाओगे. Another important thing is related with dispute resolution. So ये एक थोड़ा रोबस्ट बना दिया गया है. टैक्स पेयर फ्रेंडली फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं इसे यहाँ पे. ऑलराइट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉर्पोरेट टैक्सेशन प्रोविजंस. तो इस बार क्या किया गया है कि द प्रोविजंस ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ऑलराइट, and alternate minimum tax, that is MAT and AMT, they have been clearly separated. All right, delineate कर दिया गया है very clearly. So MAT जब हम बोलते हैं usually these applies to the companies or zero rated companies. All right, similarly AMT is similar to MAT but it applies to non-corporates. All right, non-corporates. So that is what the idea. So these are some of the important features. और एक जो other important which was very contentious also was virtual digital space. तो act defines कि what is virtual digital space is also related with cryptocurrencies, tokenized assets, इन सारी चीजों के बारे में बात करता है. And it also gives power to the tax authorities, all right, to access information during surveys and searches from your virtual digital assets. all right, email server को भी वो देख सकते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, क्लाउड एंड रिमोट सर्वर्स एंड अदर डिजिटल एप्लीकेशंस. तो एक अच्छा खासा पावर प्रोवाइड करता है इनकम टैक्स एक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिंग योर डिजिटल स्पेस. ऑलराइट, तो दीज आर सम ऑफ द की फीचर्स जो आपको ध्यान रखने हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 2025.
Another important news, and which is very important, is that Indian economy in Goldilocks phase. All right. So, uh, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो मंथली रिपोर्ट, मंथली कमेंट्री होती है ऑन द इंडियन इकोनॉमी, इट हैज सेड दैट कि इंडियन इकोनॉमी इज इन द गोल्डी लॉक्स फेज. ऑलराइट, दिस इज अ गोल्डी लॉक्स मोमेंट. इंडियन इकोनॉमी का गोल्डी लॉक्स मोमेंट चल रहा है. एंड वेरी रिसेंटली RBI governor has also that it is, we are very fortunate that Indian economy is having a Goldilocks phase right now. All right, तो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज द आइडिया, व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी व्हेन यू आर ट्राइंग टू से दैट गोल्डीलॉक फेज. सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जून 2025 की जो मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है, इनकी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू जिसको बोलते हैं, इट हैज डिस्क्राइब्ड द इंडियन इकोनॉमी एज बीइंग इन अ गोल्डीलॉक मोमेंट. Right, and the RBI governor also very recently has said that Indian economy is in a rare Goldilocks phase. All right, so what is the meaning of Goldilocks phase? So Goldilocks phase मतलब होता है एक ideal situation of an economy. All right, ideal situation of an economy जहां पर economy is moving such that कि it is neither facing GDP slowdown or GDP decline. It has steady GDP growth, and also on the other hand, it is seeing low inflation, moderate inflation, subdued inflation. ठीक है, तो जो इकोनॉमी है वो कैसे चल रही है? स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जिसका मतलब है कि स्लो डाउन नहीं है, इकोनॉमी जीडीपी इंक्रीज कर रही है ईयर ऑन ईयर, दैट इज अ वन थिंग. बट जीडीपी उतना इंक्रीज कर रही है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं हो रहा है. तो इन्फ्लेशन इज सबड्यूड, इन्फ्लेशन इज लो, जिसके कारण से देर इज ऑलवेज अ मॉनेटरी स्पेस for the lowering the interest rate. All right, this is what is called as Goldilocks moment in the economy. All right, so Goldilocks scenario for an economy refers to a point where it is running just perfectly, neither too hot, all right, meaning that कि inflation बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, neither too cold, meaning that GDP growth कम भी नहीं हो रही है. तो एक आइडियल सिचुएशन की आप बात कर सकते हैं. दिस इज द आइडियल सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी. ऑलराइट, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स होते हैं उसमें कोई इम्बैलेंस नहीं है. ऑलराइट, हमारे जीडीपी ग्रो कर रही है. जैसे अपने वेरी रिसेंटली यू माइट हैव सीन दैट द जब लास्ट नो जीडीपी का नंबर्स आए थे क्वार्टर टू ऑफ नो फाइनेंशियल ईयर 2025-26, तो 8.2% है रियल जीडीपी ग्रोथ. ऑलराइट, सो दैट इज ऑल्सो. इन्फ्लेशन की बात करें तो सीपीआई इज इन अ नो लेस देन सिंगल डिजिट, यू कैन से दैट इन फ्रैक्शंस. ऑलराइट, तो दैट इज व्हाट द आइडिया कि 0.25%, 0.7% सीपीआई अभी हॉवर कर रहा है, एंड डब्ल्यूपीआई इज इन नेगेटिव टेरिटरी. तो इन्फ्लेशन भी बहुत सबड्यूड है, बहुत कम है. एंड वेरी रिसेंटली आरबीआई हैज कट द रेपो रेट ऑल्सो. So there is a monetary space to cut the interest rate. So that is what is calling as Goldilocks phase of an economy. Goldilocks phase of an economy. जैसे अभी बात करें कि inflation is low. One of the key factors for low inflation right now is low prices of vegetables, pulses, etc. All right. तो फूड इन्फ्लेशन कम है, इसी की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम हो चुका है इस समय. दैट इज व्हाट द आइडिया. ऑलराइट, और एक और इन्फ्लेशन अगर कम की हम बात कर रहे हैं, व्हाई इट इज हैविंग अ फेवरेबल बेस इफेक्ट. ऑलराइट, तो बेस इफेक्ट भी वहां पे आ रहा है. दैट इज व्हाई वी आर सीइंग द वेरी लो इन्फ्लेशन राइट नाउ. ऑलराइट, तो दैट इज द थिंग. अगर बहुत इन्फ्लेशन इज लो या गोल्डीलॉक फेज में हम बोलें कि हु विल बी द बेनिफिशियरी एंड हु विल नॉट हैव द गुड टाइम, तो हु गेन्स जब हम बात कर रहे हैं, तो बोरोवर्स विल गेन, आइदर नो कॉमन पीपल और द कॉर्पोरेट बोरोवर्स, उनको सारी नो दे विल गेन बिकॉज आरबीआई इज रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट, तो उनकी जो ईएमआई आउटगो हो जाएगी वो कम हो जाएगी. दूसरा, गवर्नमेंट हु इज द मेजर बोरोवर
नो मेजर बोरोइंग प्लेयर इन द मार्केट. सो लोअर इंटरेस्ट रेट मतलब उनका जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा. एंड देन लार्ज कॉर्पोरेट, सिंस नो इंटरेस्ट रेट इज लेस, they can take more loans, they can go for investment, they can go for hirings, they can go for mergers and acquisition, अपने plants को expand कर सकते हैं. And ultimately because economy is growing, so demand is there, so they may earn more profits. सो दैट इज व्हाट द आइडिया कि हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प देम. और किसके लिए उतना खराब हो रहा है? ऑलराइट, लो इन्फ्लेशन. ऑलराइट, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट इट विल हिट हार्ड टू द फार्मर्स because food prices are reducing, so they may indulge in distress sale, they may not get no remunerative prices to their फार्म्स और टू देयर प्रोड्यूस. तो फार्मर्स के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, बट अगर कंज्यूमर्स की बात करें तो वो अच्छा होगा बिकॉज दे आर गेटिंग फूड आइटम्स एट ए रिलेटिवली चीपर रेट. राइट, सो ये सारी बातें कर लेंगे. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच विच विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है. सो लोअर इंटरेस्ट रेट्स बेनिफिट्स बोरोवर्स, दैट इज द वन थिंग. यहाँ पे ईएमआई कम हो जाएगी लोगों की. ऑलराइट, सो पीपल में टेक मोर लोन्स. ऑलराइट, people may go for more consumption, whereas private sector may go for more investment by taking the loans. All right, so household would like to leverage and advance consumption through loans. Through loans will have lower EMI, so consumption बढ़ सकता है because EMI कम है. Industry wants to build capacity will have lower interest rate. तो no जो भी इन्वेस्टमेंट विच इज बीइंग डन बाय द इंडस्ट्री, दे विल बी टेकिंग लोन्स और इनका ईएमआई कम रहेगा. सो देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. द वर्किंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ एमएसएमई वुड बी लोअर, दैट इज वन important point. Then cost of living will be controlled because inflation is less, inflation is low, and hence the dearness allowance outgo of employees of the government will be lower because inflation is low. Dearness allowance is indexed with the inflation. अभी इन्फ्लेशन कम है तो डियरनेस अलाउंस आउटगो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का कम हो जाएगा. Releasing some physical headroom for more investment. So more investment can be done by the government. All right. So all these things जो भी हमने सारी बातें की हैं ये, these would further support demand, consumption and consequently further growth. और जो virtuous cycle एक बन सकती है यहाँ पे for the growth. All right. So this would lead to more jobs and hence further adding to the consumption. That is what the idea. Virtuous cycle of consumption would be there. Generally, the Goldilocks period should benefit all segments. Usually, it benefits all segments. If there are any downsides through any channel of impact like stress or net interest margin of banks, they would offset with higher credit growth rates. So यहाँ पे इस statement से you can understand कि what is going on during this Goldilocks phase or Goldilocks moment in the Indian economy. तो ये भी एक बहुत important है. Just keep this in mind. Right. Next, another important thing is Unified Pension Scheme (UPS), all right, which is there as a part of National Pension Scheme, all right, Unified Pension Scheme. So Central finally notifies Unified Pension Scheme option for government staff covered by NPS, all right. So they have finally come out with the notification of UPS. So एक बार देख लेते हैं what is there. So points to know about the UPS के बारे में क्या क्या चीज है. So it has been introduced by Government of India as an option under NPS. NPS के अंडर एक option है. Alright, it is एक चीज ध्यान रखेंगे, it is not mandatory to enroll in UPS. You will be given an option under NPS कि whether you want to enroll for NPS or whether you want to go for UPS. Alright, for the central government employees. और इसका रेगुलेटर कौन है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज PFRDA. अब कुछ की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं. यूपीएस में क्या है? पहला है एश्योर्ड पेंशन. ऑलराइट, एश्योर्ड पेंशन की बात हो रही है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द यूपीएस. एश्योर्ड पेंशन कितना? 50%
of the average basic pay drawn over the last 12 month. और एश्योर्ड पेंशन के लिए आपको जो टेन्योर ऑफ द सर्विस कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 25 ईयर्स। एक बार आप 25 ईयर्स की सर्विस क्रॉस कर गए, देन यू आर नो एलिजिबल फॉर एश्योर्ड पेंशन। ठीक है, पहली चीज। अगर आप 25 ईयर्स के से कम में रिटायर हो गए, सो यू विल गेट अ प्रोपोर्शनेट फॉर लेसर सर्विस पीरियड। तो प्रोपोर्शनेट पेंशन है, ऑलराइट, प्रोपोर्शनेट पेंशन है अगर आप 25 ईयर से कम में रिटायर हो गए विद इन द सर्विस। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि एश्योर्ड पेंशन इज व्हेन यू सर्विस इज लेंथ इज ग्रेटर देन 25 ईयर्स। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। So that minimum pension is 10,000 per month, all right? And minimum length of the service is 10 years. Minimum length is 10 years. All right? तो अगर आप 10 साल सर्विस के कर लेंगे तब आपको मिनिमम पेंशन एश्योर्ड हो जाएगी। दैट इज द वन थिंग। अगर आप मिनिमम 25 ईयर्स की सर्विस कर लेंगे तो यू विल बी गेटिंग अ एश्योर्ड पेंशन ऑफ 50% ऑफ जो भी आपकी एवरेज बेसिक पे रही होगी। एंड बिटवीन 10 ईयर्स टू 25 ईयर्स पे आपको प्रोपोर्शनेट पेंशन मिलती है। आपको प्रोपोर्शनेट पेंशन मिलती है कि अकॉर्डिंगली आपको मिनिमम से और जो एश्योर्ड पेंशन के बीच का पेंशन आपको, कि डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच टेन्योर इज देयर बिटवीन 10 to 25 और आपकी सैलरी वगैरह क्या थी, उसके अकॉर्डिंगली यू विल गेट द प्रोपोर्शनेट पेंशन। ऑलराइट, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एश्योर्ड फैमिली पेंशन। ऑलराइट, अगर किसी कारणवश द पर्सन डाइज तो ऑलराइट, तो उसकी फैमिली को एश्योर्ड है 60% ऑफ द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हिज हर और हिज डिमाइज। सो 60% का पेंशन एश्योर्ड है। दैट इज व्हाट। अनदर क्रूशियल फैक्टर इज इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। तो ये सारा चीज जो एश्योर्ड पेंशन है, एश्योर्ड फैमिली पेंशन है एंड एश्योर्ड मिनिमम पेंशन है, दे आर इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएंगे। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स रहेगा। ऑलराइट, जो डियरनेस रिलीफ है दैट इज बेस्ड ऑन सीपीआई आईडब्ल्यू। ऑलराइट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर पे बेस्ड है। सो डियरनेस रिलीफ इज देयर। अनदर क्रूशियल फैक्टर इज व्हाट यूनिफाइड पेंशन टॉक्स अबाउट इज लंप सम पेमेंट। ऑलराइट, तो जब आप रिटायर हो गए तो आपको एक लंप सम पेमेंट मिलेगा विच विल बी अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेचुटी, which will be apart from your gratuity, and this lump sum payment will not reduce the quantum of assured pension. So एक ये भी ध्यान रखेगा कि lump sum payment की बात कर रहे हैं when you're talking about UPS. Another crucial factor is what we have said, UPS is optional. Alright, तो एक ऑप्शन है अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम में कि यू कैन एनरोल अंडर द यूपीएस स्कीम। ऑलराइट, देन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। ऑलराइट, सिमिलर टू नेशनल पेंशन सिस्टम, दिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम। तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 10%। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 18.5%। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी है। अनदर क्रूशियल फैक्टर इज दैट यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज एप्लीकेबल टू द serving central government employees as well as retired government central government employees till the certain, if they comply with the certain specific conditions. तो दोनों के लिए है, serving as well as retired central government employees. So these things you have to keep in mind when you're talking about unified pension scheme. Alright, तो ये important है. Another news which has been often seen is related with social stock exchange. Social stock exchange. So you can see that a Bengaluru-based Unnati Foundation became the first NGO in the country, in India. All right, Unnati Foundation became the first NGO in the country to be listed on social stock exchange of BSE and NSE. तो देख लेते हैं कि what is the social stock exchange. So social stock exchange, Unnati Foundation became the first NGO of India to be listed on the NSE and BSE social stock exchange. So that is a important news.
So what we are talking about social stock exchange में, see, the when we talk about the social stock exchange, so one of the thing which we are keeping in mind is that it is providing a avenue to the non-profit organization, to the NGOs, all right, to raise funds from the people. That is what the idea of social stock exchange. That is what the idea of social stock. अभी जैसे आप देखो एनजीओ में, एनजीओ if you want to have a key from where they are getting the finances. So it can be from, let us say, from corporates under corporate social responsibility की बात कर लें, और they are accessing funds via government. तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज की हम जब बात कर रहे हैं तो इट प्रोवाइड्स एवेन्यूज टू द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन to get listed on this social stock exchange and raise fund from the investors. Alright, तो एक एवेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि इफ यू आर वर्किंग इन हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन एटसेट्रा, सो यू विल बी गेटिंग अ फंड्स। ऑलराइट, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज जब हम बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट, अगर बैकग्राउंड देखें तो इट वाज प्रपोज्ड इन 2019-20 बजट। उसके बाद सेबी ने एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई थी अंडर इशात हुसैन, जिसने रिकमेंडेशन दी थी, और उसी रिकमेंडेशन के बेसिस पे सेबी हैज नोटिफाइड सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जो फ्रेमवर्क है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस कमिटी रिकमेंडेशन, एंड दिस बिकेम ऑपरेशनल इन 2023। ठीक है, जो इस्टेब्लिशमेंट की बात है तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट अ सेपरेट सेगमेंट। ऑलराइट, कोई ऐसा अलग से स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, बट सिंपली इट इज अ काइंड ऑफ सेपरेट सेगमेंट अंडर द एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज। ये ध्यान रखिएगा कि एक न्यू स्टॉक एक्सचेंज नहीं बना दिया गया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। सिंपली इट इज अ सेपरेट सेगमेंट अंडर द एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज का? तो टू इनेबल एंटिटीज सच एज एनजीओज टू रेज फाइनेंसेस फॉर सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए इफ यू आर वर्किंग इन एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा, तो सोशल सेक्टर, सोशल स्टॉक एक्सचेंज विल हेल्प यू टू रेज फंड फ्रॉम द पीपल। एलिजिबिलिटी क्या है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन एसएससी? सो नो, two types of can register. First is non for profit organization. All right, non for profit organization, all right, such as charitable societies, all right, or company incorporated under the section 8 of Companies Act 2013, or we can have a for profit social enterprise which are having working in the no social sectors, for example health, education, sanitation, employment generation, welfare of women etc. वो सारे सेक्टर में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो देन यू आर एलिजिबल। और कौन नहीं है एलिजिबल कि यू कैन नॉट एक्सेस द सोशल स्टॉक एक्सचेंज टू रेज फंड? कॉर्पोरेट फाउंडेशंस, पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंपनी। सो दे आर डिबार्ड from registering or raising fund using the social stock exchange. Another important thing is non-profit organization would be deemed ineligible if it depends on corporates for more than 50% of its funding. अगर किसी एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोर देन 50% इज फंडिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, तो वो नहीं फिर सोशल स्टॉक एक्सचेंज को एक्सेस नहीं कर सकता। नाउ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे मनी रेज करेंगी from the social stock exchange? So first is by issuing जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। ऑलराइट, सो जीरो कूपन एंड जीरो प्रिंसिपल मीनिंग जो ये इंस्ट्रूमेंट होगा, इसमें जो पैसे लगाएंगे आप, that will be more of a, you are believing in that it will help in health, education, sanitation etc. तो यहाँ पे no interest is being paid and on maturity no principal amount is being paid. So that is what the idea, zero coupon
जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट. सो हियर नो इंटरेस्ट इज बीइंग पेड एंड नो पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मेच्योरिटी. ये कोई चीज यहाँ पे नहीं हो रही है. इसका जो मिनिमम इशू साइज है, ऑलराइट, व्हिच कैन बी इशूड, इज मिनिमम साइज इज 1 crore एंड मिनिमम एप्लीकेशन साइज फॉर सब्सक्रिप्शन जो इन्वेस्टर्स लगाना चाहेंगे, दैट इज ₹2 lakh. राइट, तो ये ध्यान रखिएगा. जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, which is a main instrument which is used by non-profit organization on the social stock exchange. दूसरा जो which they can use is social impact fund, which is a kind of category 1 fund of AIF registered with SEBI, or they can get donations from the mutual fund. So through these instrument, non-profit organization can raise money from no, on the platform of social stock exchange. गवर्नेंस एंड ओवरसाइट की अगर हम बात करें तो what is there, राइट? तो social stock exchange functions under SEBI. So who is regulating this? So since it is one of the you can say no, they are under the BSE and NSE, so overall regulator is SEBI. Like, as this social stock exchanges are being, you can say, hosted by the BSE and NSE. यहाँ पे जब सोशल स्टॉक एक्सचेंज का क्या मैंडेटरी है, एनुअल डिस्क्लोजर्स, इम्पैक्ट रिपोर्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड रिपोर्टिंग. ये सारे डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज. राइट, so this is there when you're talking about social stock exchange. Another important news which has been there is no, financialization of economy. So जो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 था, what it has said that कि excessive financialization of Indian economy can actually hurt the Indian economy. Right? कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर का डोमिनेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा विज रियल सेक्टर, जैसे हम नो इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, so this type of question has also been asked in the prelims. So one is financial sector, and another is real sector. All right. So financial sector is related with finances. All right. Somebody is taking loans, banks are giving loans, you are depositing, you know, people are putting money in the mutual funds, people are putting money in their stocks, etc. This is the financial sector की बात कर रहे हैं. Real sector is what is actually happening in the economy. Farmers are producing wheat, no, car companies producing car, etc. These are the real sector. These are the what we call as real sector. Alright, तो इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है, अगर फाइनेंशियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, फाइनेंशियल सेक्टर डोमिनेट करने लगेगा रियल सेक्टर पे, देन इट इज नॉट अ गुड साइन. It is not a good sign. All right. So that is what the idea. It can hurt economy. All right. It can hurt economy. So this is there. So क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 हाईलाइट्स कंसर्न्स अबाउट द रैपिड ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. तो फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर रहे हैं. सो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ, जहां पे डोमिनेंस है फाइनेंशियल मार्केट की या फाइनेंशियल सेक्टर की ओवर द रियल इकोनॉमी. दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ financialization of the economy. All right. So there is a increase in domination of financial market, financial instruments, financial institution, etc. over in the overall economy. That is what the idea of financialization of economy. यहीं पे एक और टर्म यूज होता है, financialization of savings. Financialization of savings. तो यहाँ पे ये भी इंडिया में देखने को मिलेगा, there is a इंक्रीज इन फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. तो अर्लियर जो हमारी सेविंग्स थी, जो हमारी ट्रेडिशनली या अर्लियर जो हम सेव करते थे, दैट वाज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ लेट अस से कैश रखते थे अपने पास, गोल्ड रखते थे, या लेट अस से रियल एस्टेट, नो, बिल्डिंग खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, इस उसमें रखते थे. दिस वाज मोस्टली इन
फिजिकल एसेट्स। कहने का मतलब है द सेविंग वाज मोस्टली इन फिजिकल एसेट्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, कैश, एटसेट्रा। बट नाउ दिस इज मूविंग टूवर्ड्स फाइनेंशियल एसेट्स। जो हमारा सेविंग्स हो रहा है दैट इज मोस्टली no, shifting towards financial assets. So we are investing in stocks, bonds, mutual funds, insurance funds, pension funds. So that is what the meaning of financialization of saving. So financialization of economy, जहाँ पे financial sector is trying to dominate the real economy. ठीक है। तो अब इंडिया में हम क्या देखने को मिलता है? इंक्रीजिंग फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑलराइट, इंक्रीजिंग फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो देयर हैज, अगर आप लास्ट कुछ सालों से देखो, स्पेशली आफ्टर कोविड, तो देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन एक्सपेंशन of the financial market, stock market, bond market, derivative market, no future and options. You might have seen the reports of the SEBI where they are saying that increase in number of youths who are involved in future and options trading, जहाँ पे mostly they are suffering losses. तो देर हैज बीन एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा आप देखो कि देर हैज बीन इंक्रीज इन नंबर ऑफ आईपीओस। राइट, तो एक ये भी हो गया। देन देर हैज बीन इंक्रीज इन द, यू कैन से, रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन द स्टॉक मार्केट। राइट, तो डीमैट अकाउंट जो हमारा बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया, पीपल ओपनिंग द डीमैट अकाउंट हैव सिग्निफिकेंटली increase. So there is a no financial, that is what we are seeing, that financialization of Indian economy has happened. अब इससे रिलेटेड रिस्क क्या होता है? ऑलराइट, तो पहला तो रिस्क क्या है कि नो यूथ, जैसे फॉर एग्जांपल यूथ में बी नो ऑलवेज प्लानिंग टुवर्ड्स कि कितना क्विकली मनी बना लें। सो जैसे स्टॉक से मनी बना लें या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग से मनी बना लें, तो रिस्की ट्रेड में या रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, विच में लीड टू इंक्रीज इन डेट। So that is what there, and it will lead to speculative behavior in the market. All right. Another crucial aspect is that it may increase the, you can say, inequality. कि मार्केट में पैसे कौन लगाएगा? जिसके पास ऑलरेडी पैसे हो वही मार्केट में पैसे लगा पाएगा। तो इट में इंक्रीज द इनइक्वालिटी। ऑलराइट, तो दैट इज व्हाट द आइडिया। So that is some of the risk which economic survey talks about, right? And it ultimately warns that rapid financial market growth without corresponding economic growth has led to crisis in both developed and developing countries. You can say 2008 का जो financial crisis था, that is one of the example of excessive financialization of economy. Right, excessive financialization of economy. So that is what the idea of financialization of economy, which the economic survey is talking about. All right, another important news, let us see, is specialized investment fund, that is SIF, a new type of investment fund which SEBI has launched. All right, which SEBI has allowed. राइट, तो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड अभी क्या है? जैसे अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड्स विच आर देयर इज म्यूचुअल फंड, विच इज मोस्टली फॉर द मासेस। देन वी हैव पीएमएस एंड एआईएफ, विच इज फॉर द मोर वेल्दी पीपल। राइट, तो इसी में जो एसआईएफ है, दैट इज एक्टिंग एज ए ब्रिज बिटवीन म्यूचुअल फंड, विच इज फॉर द मासेस, and the PMS and AIF, which is for the high net worth individuals या people having more money. All right. So एक बार देख लेते हैं specialized investment fund. All right. So SEBI recently allowed mutual funds to introduce a new asset class, that is a specialized investment fund, which will be placed between a regular mutual fund scheme and PMS AIF in terms of investment requirement. It can be launched from April 1, 2025. What are some of the things which you need to know? So it acts as a bridge between mutual fund, which is mass market. Like entry barrier is, you can start SIP in the mutual funds as low as 500 rupees. And portfolio management service, which is, entry barrier is much higher, 50 lakhs.
right, which is high ticket investment option, right? So that is what the idea. मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें अगर हम, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड इज 10 lakh rupees. It is 10 lakh rupees. All right. When you're talking about portfolio management services, it is 50 lakh rupees. All right. Minimum investment. When you're talking about alternate investment fund, it is 1 CR, 1 crore is the minimum investment. जब हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हो, it can be as low as 500 rupees. All right. So that is what the idea. Then fund house can offer systematic investment option. क्या क्या उसमें कर सकते हैं? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफर कर सकते हैं, उसके अंदर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान कर सकते हैं अंडर द स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड. Like another crucial aspect is that SIF can be open-ended, it can be close-ended or interval based. That is another important thing. अब SIF के अंदर 3 type of investment strategies can be adopted by mutual fund houses. क्या क्या कर सकता है? पहला है equity oriented, another is debt oriented, and third is mix of, that is hybrid oriented. बस इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो भी एक फंड होगा उसमें एक ही स्ट्रेटजी चल रही होगी. इट कैन नॉट बी मिक्स ऑफ कि इक्विटी भी चल रहा है और डेट भी चल रहा है, हाइब्रिड भी चल रहा है, इक्विटी भी चल रहा है. वो दैट इज व्हाट द आइडिया. तो एक चीज ये ध्यान रखेंगे. सो दिस इज द सम ऑफ द थिंग्स. Another thing is who can launch a specialized investment fund. So the mutual fund houses which are in operation for last 3 years and an average asset under management of not less than 10,000 crores. In the immediately preceding 3 years, SEBI has allowed that they can launch SIF. Another is if the newer entrants, जो newer fund है, newer mutual fund houses हैं, they want to launch SIF, they can do so after appointing a chief investment officer, all right, and fund manager. तो ये भी कर सकती हैं, but they have to appoint this chief investment officer and a fund manager. ठीक है. अब अगर जो इंपॉर्टेंट फंड्स हैं उसमें देख लें, दैट इज म्यूचुअल फंड्स, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फंड एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. राइट. तो दैट इज व्हाट, ये यहाँ पे एक ब्रिज, एक्टिंग एज ए ब्रिज का काम कर रहा है. म्यूचुअल फंड्स, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स विच इज रेगुलेटेड हैवीली, बहुत हैवीली रेगुलेटेड है सेबी के लिए. सो they cater to retail investor, usually retail investors, and allow exposure to broad set of asset classes such as equity में लगा सकते हैं आप म्यूचुअल फंड के थ्रू, डेट के थ्रू, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन के थ्रू लगा सकते हैं. एंट्री बैरियर इज लो, like as low as rupees 500. Highly liquid, this is very very liquid. Alright. Standardized investment strategy होती है, either equity में लगा रहे हो, डेट में लगा रहे हो और हाइब्रिड में लगा रहे हो. Alright. And it is ideal for passive investors जो लगा के भूल गए कि भाई ठीक है, I am giving 500 and then let me see कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद क्या हो रहा है. So that is what the idea. Then specialized, which is acting as a bridge between mutual fund and portfolio management services. यहाँ पे minimum 10 lakh है. Alright. यहाँ पे क्या है, low entry barrier than PMS and AIF. Portfolio management services basically हाई अर्निंग एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स जो हैं, दे आर लुकिंग फॉर, उनका पोर्टफोलियो मेंटेन करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. ऑलराइट. तो यहाँ पे फॉर पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज, वेरी पर्सनलाइज्ड होता है. सो दे प्रोवाइड डिस्क्रिशनरी और एडवाइजरी सर्विस फॉर पोर्टफोलियोज यूजुअली मैनेज्ड बाय एक्सपीरियंस फंड मैनेजर. यहाँ पे मिनिमम टिकट साइज क्या है, 50 लाख. तो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ पर्सनलाइजेशन है. म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा कोई पर्सनलाइजेशन नहीं है. म्यूचुअल फंड है एक तरह का इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड, हाइब्रिड ओरिएंटेड. आप उसको लगाना है तो लगा दीजिए, बट ऐसा कोई आपकी तरीके से वो पर्सनलाइज्ड नहीं होगा. एक्टिवली मैनेज्ड एंड बी स्पोक एसेट एलोकेशन. देन लोअर लिक्विडिटी देन म्यूचुअल फंड, एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे. देन हायर कॉस्ट इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस फीस. तो एक चीज है. उससे भी ऊपर क्या है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं बाय द इंडियन इन्वेस्टर्स और द फॉरेन इन्वेस्टर्स. ऑलराइट. तो प्राइवेट इक्विटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स, स्ट्रक्चर्ड डेब्ट्स एक्सेट्रा.
यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज ₹1 करोड़, राइट। 3 कैटेगरीज की बात होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। देन इट इज लेस लिक्विड बिकॉज लॉक इन पीरियड होता है मिनिमम 3 इयर्स का, राइट। सेबी का थोड़ा लोअर रेगुलेटरी ओवरसाइट होता है एंड इट इज आइडियल फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जहां पे रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज्यादा है, हाइयर रिस्क टॉलरेंस है, तो पीपल आर गोइंग फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बिकॉज वहां पे हाई रिस्क है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है, करेक्ट। तो दीज आर फ्यू थिंग्स, फ्यू इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। नेक्स्ट, सेबी वॉन्ट्स अगेन डिजिटल गोल्ड एंड ई गोल्ड प्रोडक्ट्स, राइट। सो सेबी ने अभी एक पब्लिक एडवाइजरी जारी किया था, वेयर इट कॉशनड द जनरल पीपल और द जनरल पब्लिक अगेंस्ट द इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड और यू कैन से ई गोल्ड प्रोडक्ट्स। सो लेट अस सी, डिजिटल गोल्ड्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इट रिफर्स टू बाइंग गोल्ड विदाउट फिजिकली प्रोसेसिंग द प्रीवियस मेटल्स, राइट। जैसे कई बार आप देखो कि पेटीएम पे भी व्हेन यू स्क्रैच द कार्ड्स जो विच यू गेट, जब आप पैसे ट्रांसफर करते हो या कुछ बाय करते हो, यू गेट सर्टेन कार्ड्स, अगर उसको आप स्क्रैच करोगे दे विल से दैट कि यू हैव गॉट 1 डिजिटल गोल्ड या 2 डिजिटल गोल्ड या 3 डिजिटल गोल्ड्स। So it is like कि you are buying gold without physically possessing the precious metals. The price of digital gold is linked to that of physical gold. वो price उससे linked रहता है, right? डिजिटल गोल्ड इस कैसे क्रिएट करते हैं? यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट। तो इट अलाउज इन्वेस्टर्स टू बाय, सेल एंड स्टोर गोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, राइट। तो दैट इज व्हाट द आइडिया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, अलाउज टू बाय, सेल और स्टोर गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, फिजिकली आपके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हो तो आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाना होता है, ऑलराइट। तो यू रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे डिजिटल गोल्ड में जब बातें करते हैं तो दे विल से दैट ₹100 का डिजिटल गोल्ड ले लीजिए, है नो। दैट इज व्हाट द आइडिया कि बहुत मिनिमम अमाउंट पे यू स्टार्ट ओनिंग द गोल्ड, ऑलराइट। तो दैट इज व्हाट द आइडिया। तो डिजिटल गोल्ड्स और ई गोल्ड प्रोडक्ट अलाउ इन्वेस्टर टू स्टार्ट ओनिंग द प्रीवियस मेटल विथ बहुत लिमिटेड अमाउंट, स्मॉलर अमाउंट से, राइट। एक स्टोरेज का हैसिल भी ये आपके लिए नहीं करता है, right? So that is what the idea. Also, digital gold allows investors to convert their investment into physical gold whenever required. It can be converted into coins, bars or jewelries. एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, that if you want to invest in digital golds, you do not require डीमैट अकाउंट, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं डिजिटल गोल्ड की। सेबी की जो एडवाइजरी थी विच वर वार्निंग द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इन इन्वेस्टिंग इन द डिजिटल गोल्ड, वो क्या कह रही थी? राइट, पहला है सेबी डज नॉट रेगुलेट द डिजिटल गोल्ड। तो डिजिटल गोल्ड इज नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी। तो डिजिटल गोल्ड्स आर नीदर नोटिफाइड एज सिक्योरिटी नॉट रेगुलेटेड एज कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय द सेबी। इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड में एंटेल सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर आपके पास पैसे नहीं मिल रहे हैं या प्लेटफॉर्म आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है या गोल्ड नहीं दे रहा, तो यू कैन नॉट गो टू द सेबी, ऑलराइट। तो वो ग्रीवांस रिडल्सल नहीं है बिकॉज इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय द सेबी। जो प्रोडक्ट, गोल्ड प्रोडक्ट कुछ सेबी रेगुलेट करता है वो कौन कौन से हैं? गोल्ड ईटीएफ हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट हो गया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, जो भी सरकार ने अलाउ अब बंद कर दिया है इशू करना, बट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडेड ऑन एमसीएक्स एंड एनएससी। ये सारी जो सिक्योरिटीज हैं ये comes within the purview of SEBI, but digital gold जो है that does not come under the purview of SEBI। और उसी पे SEBI ने हाईलाइट किया था कि people should very cautiously invest in digital gold because if there is any grievances, SEBI may not be able to solve it because वो regulate ही नहीं करती, alright? तो ये important था उससे related। Another news was related with share buyback। So few months back you might have heard that India's company, IT company Infosys, they have announced the largest ever share buyback, right? तो it was worth ₹18,000 crores। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या है शेयर बायबैक। तो शेयर बायबैक इज, जैसे एक दो चीज ध्यान रखिए, शेयर्स, ऑलराइट, व्हेन कंपनी इशूज शेयर्स, राइट, जब कंपनी इशू करती है शेयर्स, देन इट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, इट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन
to buy it back. No obligation to buy it back. ये ध्यान रखिएगा. When company issues shares, it is under no obligation to buy it back. तो जो शेयर बायबैक करती है कंपनीज, जो शेयर बायबैक करती है, इट इज वॉलंटरी. मन कर रहा है तो कर रहे हैं. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ शेयर बायबैक. Alright, it is not under any obligation. Company is under no obligation to buy back its shares which it has given to the people. Alright, investors जो उसने इन्वेस्ट किया. तो दैट इज व्हाट द आइडिया. तो शेयर बाय बैक इट इज डन वॉलंटरी. यहां पे कंपनी क्या कर रही है? दे आर बाइंग देयर ओन शेयर्स फ्रॉम द मार्केट. यही कर रही है. तो a share buyback is also called as stock repurchase, is where a company decides to buy its own shares from the existing shareholders. ठीक है. तो कंपनी है, ऑलराइट, लेट अस से इट इज सिटिंग ऑन द कैश पाइल. उनके पास प्रॉफिट है, कैश पाइल. ऑलराइट. तो वन ऑफ द थिंग्स विच दे आर लुकिंग फॉर इज शेयर बायबैक. तो ठीक है, शेयर बायबैक कर रही है देन. ऑलराइट. तो यूजुअली जब शेयर बायबैक अनाउंस होता है तो द कंपनी विच इज बाइंग द शेयर यूजुअली एट हायर प्राइसेस देन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ दैट कंपनीज शेयर. यूजुअली वो हायर प्राइसेस अनाउंस करती हैं कि विल बाय बैक एट लेट अस से 100 रुपीज. अगर एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर चल रहा है लेट अस से 95 रुपीज. तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ शेयर बायबैक. ऑलराइट, क्यों कंपनी करती है शेयर बायबैक के लिए? व्हाट इज द आइडिया? ऑलराइट, तो वन ऑफ द फ्यू थिंग्स इज फॉर एग्जांपल टू रिटर्न सरप्लस कैश टू द शेयर होल्डर्स. उनको लगता है कि हाँ, वन ऑफ द वे ऑफ गिविंग कैश टू द शेयर होल्डर्स इज टू शेयर बायबैक. To boost earning per share because share prices will increase, तो earning per share will increase. To show confidence in the company's performance, उनको पता है कि in the over a period of time companies के shares will increase, the prices of shares will increase. तो वो to show that confidence companies go for share buyback. To reward shareholders with premium price कि हाँ आपने शेयर रखा हुआ था, now you can sell, you have options to sell at the higher prices. And to prevent dilution of ownership, जब कंपनीज खरीदती है, कंपनीज के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो लड़स से रहते हैं वो खरीदते हैं तो अपनी शेयर होल्डिंग्स कंपनी पे मजबूत कर लेते हैं. तो दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ दिस शेयर बायबैक. डिसएडवांटेज क्या है? पहली थिंग है कि यू हैव मनी, इट विल लीड टू डिप्लीशन ऑफ योर कैश रिजर्व्स. देन इफ यू आर बाइंग योर शेयर्स फ्रॉम द मार्केट, so it will lead to few shares which are being traded, तो less liquidity हो सकती है. And then company may ignore the long term investment, long term capacity expansion. ये नहीं कर रही है, rather than जो उसके पास कैश है उससे शेयर बायबैक कर रही है. तो लॉन्ग टर्म में it may impact their productivity. So that can also be a case. Right? So this is related with share buyback. Next is, which has been prominently in news last 3, 4, 5 months, है कि depreciation of rupee vis-a-vis, especially vis-a-vis dollar. तो जो हम नवंबर 21 की बात कर रहे हैं उस समय 89 रुपीज तक गिर गया था. अभी तो 90 रुपए से नीचे की जा चुका है. तो देयर हैज बीन depreciation of rupee vis-a-vis dollar. तो अगर सिंपल टर्म में depreciation का मतलब समझना है तो $1 is equal to, let's say, ₹80. And when we are saying that depreciation of rupee, money is losing its value vis-a-vis in terms of dollars. So what is happening? $1 is equal to, let us say, ₹90. So this is showing the depreciation of rupee. Depreciation of rupee vis-a-vis dollar. Vis-a-vis dollar. All right. All right. So that is what the idea. That is what the idea. So this is what is happening when we're talking about depreciation of rupee. तो अभी for the last few months की बात करें आप तो suddenly the depreciation of rupee has occurred. अभी तो 90 मार्क भी ब्रीच कर दिया है. तो that is what the idea.
तो अभी अगर आप देखो कि व्हाट इज द रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, व्हाई द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी इज अकरिंग। तो पहला है कि there has been a perceptible shift in the uh, policy of the RBI। जैसे इंडिया के केस में, इंडिया जो एक्सचेंज है, इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है, दैट इज नो मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। Right, so we have fixed exchange rate, we have floating exchange rate, and we have managed exchange rate। तो इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है दैट इज मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। सो व्हाट वी हैव सीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट कि जब रुपी डेप्रिशिएट होता था तो आरबीआई अलाउड इट टू डेप्रिशिएट अप टू अ सर्टेन लेवल, एंड उसके बाद आरबीआई विल कम इनटू पिक्चर, एंड देन दे विल provide, or they will sell dollars in the economy and try to hold the value of the rupee। तो रूपी को डिप्रिशिएशन कम होने से ये इम्पैक्ट डालता था। अभी क्या है कि आरबीआई हैज रिड्यूस्ड देयर इंटरवेंशन इन द मार्केट। तो जो सेलिंग ऑफ डॉलर्स था, बिकॉज ऑफ विच डॉलर विल बी अवेलेबल इन प्लेंटी और रूपी का डिप्रिशिएशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो आरबीआई ने अभी बंद कर दिया। Right, it has reduced, but it has reduced। Another is, I know people are taking their money, the foreign investors are taking their dollars and they are moving out of the country। तो investor का जो exodus हो रहा है, right, foreign investors are selling Indian stocks, they are taking the dollars and they are taking away their dollars from the Indian economy। That is why there is scarcity of dollars। इसी के लिए prices increase हो जा रहे हैं डॉलर के। That is what is called as depreciation of rupee। All right, so foreign investors are selling their stocks and taking their dollars and moving out of the country, moving out of the India। So foreign investors have pulled out around $17 billion from Indian equity market in 2025। Another crucial aspect is there has been a lot of trade tensions between India and USA। No, the trade agreement which India is negotiating with the USA, that has also been delayed। कोई consensus नहीं बन पाया है अभी तक, तो एक ये भी वजह है। And then there has been a record high metal and bullion prices। गोल्ड का प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गया है, तो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा हो गया है, तो डॉलर का आउटगो भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो डॉलर की स्कार्सिटी हो गई है इन द इकोनॉमी। And then weak FDI investment and external borrowing। So जो इनकमिंग FDI है या इनकमिंग डॉलर है थ्रू एक्सटर्नल बोरोइंग, वो भी बहुत कम हो गई है। तो these are some of the reasons you can say which has led to depreciation of rupee in the recent time। Depreciation of rupee से you always understand that there is scarcity of dollars, scarcity of dollars। Right, so in the Indian economy there is a scarcity of dollars, और डॉलर का आउटगो बहुत ज्यादा हो गया। That is what the meaning। Alright, so this is what the dollar versus rupee history में अगर हम बात करें तो 2001 में it was rupees 47, 2020 में weakens to rupees 75, 2023 में falls further to 80 plus, और 2025 में alright it has breached the 90 rupees marks also। alright, एक जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि what will be the impact of depreciation of rupee, the positive impact or the negative impact। alright, तो ये एक चीज ध्यान रखेंगे। alright, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। तो अगर हम एक जो बेसिक समझ लेंगे कि नो दोज हु रिक्वायर डॉलर्स इंडियन इकोनॉमी में जिनको डॉलर की जरूरत होगी, अगर जैसे मुझे डॉलर की जरूरत है तो आई हैव टू बाय डॉलर्स। राइट, इफ मुझे जरूरत है तो आई हैव टू बाय डॉलर्स। सो इंडियन इकोनॉमी में जिनको भी डॉलर की जरूरत होगी उस पे निगेटिव इंपैक्ट आएगा। ध्यान से बात सुनेंगे, जिनको भी डॉलर की जरूरत होगी, जो डॉलर परचेज करेंगे, जिसको भी इंडियन इकोनॉमी में डॉलर की जरूरत है वो डॉलर परचेज करेगा। ऑलराइट, तो जिसको भी डॉलर परचेज करना होगा उस पे निगेटिव इंपैक्ट आएगा।
those who are purchasing the dollar in the Indian economy. Who will purchase the dollar? जिनको डॉलर की जरूरत है. And those who are having the dollar, अगर किसी के पास डॉलर है, they will sell the dollar. So those people who are selling the dollars in the economy, उन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. ये एक चीज आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चंस कोई भी गलत नहीं होगा. पहला है, फॉर एग्जांपल, एक्सपोर्ट्स विल बिकम कॉम्पिटिटिव. ऑलराइट, एक्सपोर्ट विल बिकम कॉम्पिटिटिव कि हमारे नो रुपी इज डेप्रिसिएटिंग, तो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है दैट विल बिकम कॉम्पिटिटिव. तो हमारे जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं सेक्टर्स हैं, वो थोड़ा बूस्ट कर जाएंगे, उनके इनकम थोड़ी बूस्ट कर जाएगी. राइट. अनदर इज remittances. People may send, earlier they were sending $1, उसका 85 वैल्यू हो रहा था. Now they have seen that okay अब 90 रुपीज हो गया, they may send more than $1. तो remittances may increase because उनकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी. Another is domestic investment may increase because export competitiveness increases. Alright, and imports become costlier. तो जो depreciation of rupee है वो एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बना रहा है एंड इंपोर्ट्स को कॉस्टलियर बना रहा है. ऑलराइट, इंपोर्ट्स को कॉस्टलियर बना रहा है. ऑलराइट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉम्पिटिटिव कैसे हो रहे हैं? इंपोर्ट कॉम्पिटिटिव, एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव कैसे हो रहे हैं? फॉर एग्जांपल लेट अस से $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज and it suddenly goes to $1 is equal to rupees 100 rupees. Just we are taking a numbers which are easy to comprehend. $1 is equal to 80. It changes to $1 is equal to rupees 100. ठीक है. Now let us say a exporter is exporting, all right, one t-shirt जिसका प्राइस है let us say 20 rupees. जिसका प्राइस है लेट अस से 20 रुपीज. ऑलराइट, तो व्हेन वैल्यू ऑफ डॉलर इज 80 रुपीज, सो एक्सपोर्टर इज गेटिंग 80 रुपीज. ऑलराइट, तो इस प्राइस पे यहां पे दे आर गिविंग 4 टी-शर्ट्स. नाउ व्हेन रुपी डेप्रिशिएट्स दे आर गेटिंग 100 रुपीज फॉर $1. दे आर गेटिंग 100 रुपीज फॉर $1. So they are exporting, they are able to give 5 t-shirts for $1 only. तो जो बाहर का है, जो यूएस में जो इंपोर्ट कर रहा है, they are giving $1, but we are able to give them 5 t-shirts now because rupee has depreciated. So that is what the meaning of the export has become competitive. Right? Export has become competitive. So US people will say that okay, earlier I was getting 4 t-shirts, now I'm getting 5 t-shirts from the same amount of $1, so let us buy from India. So that is what the idea, our exports become competitive. ठीक है. नाउ नेगेटिव में देखेंगे, यहाँ पे फॉरेन टूरिज्म में बूस्ट, जो बाहर से आ रहे हैं, दोज हु विल सेल देयर डॉलर्स, जब बाहर से आ रहे हैं तो उनके पास डॉलर होगा, इंडिया में रुपी में खर्च करना है, तो हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड रुपी in India? Do you have to sell your dollars and get the rupee? So earlier you might be getting 80 rupees for $1. Now you are getting 100 rupees for your $1. So tourism may increase. Similarly, जब हम यहाँ पे negative impact की बात कर रहे हैं तो imports will become costlier. तो that is there. Increased cost of servicing foreign denominated debt, ये भी एक हो जाएगा, सर्विस कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, है ना, डेट की. इन्फ्लेशन में इंक्रीज, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो सकता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गई, ओवरऑल लॉजिस्टिक इंक्रीज हो गया, ओवरऑल इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो गई, सो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया. सो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कैन बी देयर, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन. ऑलराइट, करंट अकाउंट डेफिसिट में इंक्रीज. ऑलराइट, करंट अकाउंट डेफिसिट में इंक्रीज. देन एडवर्स रेटिंग बाय सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये भी हो सकता है बिकॉज नो डेप्रिसिएशन इज देयर, एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा, सॉरी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस तो इन बढ़ रही है, बट देयर इज सर्टेन लिमिट कि कितना आपका एक्सपोर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है.
तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, दे में गिव एडवर्स रेटिंग। उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? देयर इज डिक्लाइन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिक्स थोड़े से ध्यान रखिए कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो इस करंट न्यूज रहती है उससे स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को पूछ लेता है यूपीएससी। नेक्स्ट टीयर 2 की बॉन्ड्स की बात हो रही है। राइट, टीयर 1 बॉन्ड्स एंड टीयर 2 बॉन्ड्स। यहाँ पे क्या है? बैंक में रेज ₹15,000 करोड़ थ्रू टीयर 2 बॉन्ड्स। That was in the news. That is why we are taking the tier 2 bonds. So यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं हम देख लेते हैं। Several banks are racing to raise funds through tier 2 bonds. Alright, tier 2 bonds अगर आप देखें, जब हम बात करते हैं बेसल 3 नॉर्म्स की, बेसल 3 नॉर्म्स में वहां पे हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करते हैं। वहां पे we talked about tier 1 capital and tier 2 कैपिटल। तो टीयर 2 कैपिटल कैसे रेज होती है? बाय इशुइंग टीयर 2 बॉन्ड्स। ऑलराइट, बाय इशुइंग टीयर 2 बॉन्ड्स। टीयर 1 कैपिटल, अब हाउ डू यू रेज इट? बाय इक्विटी और बाय इशुइंग AT1 बॉन्ड्स और एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स की हम बात करते हैं। So this is how the idea is. So we are looking here tier 2 capitals. Tier 2 capital. तो कुछ चीजें देख लेते हैं टीयर 2 बॉन्ड्स में। तो इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय बैंक्स टू बूस्ट देयर कैपिटल बेस एंड सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशन। जो यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात कर रहे हैं, तो बैंक इज मेंटेनिंग सर्टेन कैपिटल विच इज एक्टिंग एज ए शॉक एब्सॉर्बर। ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? मिनिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो मिनिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स के लिए हम टीयर 2 के लिए बात करते हैं। इट हेल्प्स बैंक स्ट्रेंथन देयर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अंडर बेसल 3 नॉर्म्स, ऑलराइट, टू एक्टिंग एज ए शॉक एब्सॉर्बर्स। ऑलराइट, सो इट ऑफर एन इफिशिएंट एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट वे टू रेज लॉन्ग टर्म कैपिटल विदाउट डाइल्यूटिंग इक्विटी। ऑलराइट, तो टीयर 1 में जब हम बात करते हैं तो वी कैन डाइल्यूट इक्विटी ऑल्सो, बट टीयर 2 में वी आर रेजिंग फंड्स बाय रिलीजिंग टीयर 2 बॉन्ड्स। ठीक है। सबऑर्डिनेशन क्या है? टीयर 2 बॉन्ड्स आर पेड आफ्टर ऑल डिपॉजिटर्स, सीनियर डेट होल्डर्स एंड जनरल क्रेडिटर्स इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। ऑलराइट, तो ये सारे के देने के बाद ही टीयर 2 बॉन्ड होल्डर्स को पैसे मिलेंगे। ऑलराइट, हाउएवर एक चीज याद रखिएगा, दे रैंक अबव द इक्विटी होल्डर्स। ऑलराइट, कूपन पेमेंट दे पे रेगुलर इंटरेस्ट टू देयर होल्डर्स। यहाँ पे एडिशनल टीयर 181 बॉन्ड्स होते हैं, ये इसी में डिफरेंस होता है। पहले तो दे आर परपेचुअल बॉन्ड्स, कोई बॉन्ड मैच्योरिटी का पीरियड नहीं होता है, एंड ऑल्सो बैंक कैन समटाइम्स नॉट पे द इंटरेस्ट। ऑलराइट, नॉट पेज द रेगुलर कूपन, वो भी बैंक के ऊपर रहता है। Call options. Most tier 2 bonds include a call option allowing bank to redeem the bond after a specified period. तो सब mostly they are having a callable options बैंक के पास रहता है। Alright? जो यहीं पे अगर 81 बॉन्ड्स जो हमने बात करी, एडिशनल टीयर 1 एंड टीयर 2 बॉन्ड्स अगर हम देखना चाहें, तो दिस इज कोर कैपिटल एंड दिस इज सप्लीमेंट्री कैपिटल। टीयर 2 बॉन्ड्स पे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री कैपिटल। ऑलराइट, तो गॉन कंसर्न्स एंड going concern and gone concerns. All right, so intended to keep the bank operating during the stress, और यहाँ पे क्या है? intended to pay off depositor credits in case of bank closes. So tier 1 bonds and tier 2 bonds. Maturity में बात करते हैं तो they are perpetual. यहाँ पे फिक्स मेच्योरिटी रहती है, मिनिमम मेच्योरिटी इज 5 years. इंटरेस्ट पेमेंट की बात करते हैं तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द बैंक। जब 81 बांध की तो कई बार बैंक स्किप कर देते हैं, नहीं देते इंटरेस्ट, यहाँ पे मैंडेटरी होता है। राइट, प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन क्या है? राइट, तो दिस इज डीपली सबऑर्डिनेटेड। 81 बॉन्ड्स इज डीपली सबऑर्डिनेटेड। राइट, तो दैट इज व्हाट द आइडिया कि पहले 80 टीयर 2 बॉन्ड्स पैसे दे देंगे, उसके बाद 81 बॉन्ड्स को मिलेगा, तो वो भी है। रिस्क प्रोफाइल है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टीयर 1 बॉन्ड इज हाईली रिस्की। रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड ज्यादा है, यील्ड ज्यादा है।
यहाँ पे मॉडरेट रिस्क है तो यील्ड कम है, तो बैंक कम इंटरेस्ट पे पैसे ले सकता है. दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ tier 2 bonds. This is what the meaning of tier 2 and tier 1 additional tier 1 bonds. Right. Next portal is there, Bima Sugam portal, which has been launched by the IRDAI. All right, Bima Sugam portal. All right, Bima Sugam portal. ये क्या कर रहा है? It is a unified digital marketplace for insurance. All right, एक प्लेस है जहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा. All types of insurance you can access: life, health, general insurance, including motor, travel, property and agricultural policies. सारे type के insurance you can access on the unified digital market. This is Bima Sugam portal. All right. So it bring together different stakeholders such as insurance intermediaries and customers. सबको इस प्लेटफॉर्म पे मिला सकता है. कौन ऑपरेट कर रहा है? बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन, दैट इज BSIF. All right. So all insurance companies are members and hold equity stock in BSIF. All right. So through it, users can buy through using the Bima Sugam portal. You can buy, you can sell, you can provide services, you can renew, you can manage, and even claim insurance policy with ease and full transparency. That is why एक Bima Sugam portal वहां पे है. All right. The platform will serve as a centralized database to answer insurance related queries. The charges of using the platform are minimal. तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि it is not free. ऐसा नहीं है कि it is completely free. There are charges but minimal charges हैं. Alright? So ये है. तो that is what. इसी से related एक है कि बीमा ट्रिनिटी की बात कर रहे हैं. Alright? तो central government through IRDA has launched the Bima Trinity. All right, so they are talking about availability, affordability and accessibility of insurance penetration. So इसका कंपोनेंट क्या है? 3 कंपोनेंट है जिससे मिला के बीमा ट्रिनिटी की बात हो रही है, जिसमें सबसे पहला है बीमा सुगम, राइट, जिसमें यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूनिफाइड मार्केट प्लेस आप कह सकते हो, राइट, जहां पे यू कैन बाय, सेल, रिन्यू, हर तरह की चीजें आप कर सकते हो. देन देर इज बीमा विस्तार. राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है? बंडल्ड पॉलिसी कवरिंग लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी एंड एक्सीडेंट्स विथ क्विक क्लेम पे आउट्स. तो यहाँ बंडल्ड पॉलिसी है कि यहाँ 3-4 पॉलिसी एक साथ मिक्स होके आपको मिल जा रही है बीमा विस्तार में. देन बीमा वाहक, women led grassroots networks promoting insurance awareness and Bima Vistar adoption. Right, so these will be kind of people who will go door to door to advertise the insurance policies. Bima Vahak. So ये component of Bima Trinity में क्या है? Bima Sugam, Bima Vistar and Bima Vahaks. Alright. So that was related with Bima Sugam portal. एक और है ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पे भी सेबी हैज कम आउट विद अ रिलीज वेयर दे हैव वार्न्ड द इन्वेस्टर्स हु आर डीलिंग इन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स. तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट. तो व्हाट आर द सेबी हैज कॉशन्ड इन्वेस्टर्स अगेंस्ट डीलिंग विद द ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स. व्हाट आर दीज ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स? बेसिकली ये प्रेडिक्शन मार्केट होता है. जैसे आपने देखा होगा कि दीज आर द प्लेटफॉर्म्स which provide or which ask people to predict कि क्या होने वाला है. लेट अस से एनी लाइव इवेंट. कई बार आप देखते हो कि मैच देख रहे होगे कि दे विल आस्क दैट कि यू मे गेट सर्टेन मनी इफ यू कैन ट्रूली प्रिडिक्ट दैट हाउ मेनी रन्स will be there in this over, whether a wicket will be falling or not. So you just simply say yes or no. All right. So that is what the idea of opinion trading platforms. तो जो भी participants हैं उनको they try to give money. All right. If you are able to predict कि what is going to happen. That is what the idea of opinion trading platforms. All right. तो जैसे आप बहुत देखोगे प्रोबो है, स्पोर्ट्स बाजी है, MPL है, वहां पे काफी ऐसे चीजें आती हैं जहां पे आपको यस और नो में खाली आंसर बताना है. ऑलराइट. तो दैट इज व्हाट द आइडिया कि डू यू थिंक दैट बैट्समैन विल हिट 4 in this over, yes or no, you will win. So that is what the idea. That is what the idea of opinion trading platforms. All right. So this platform allow participant to earn money by investing in their prediction on any sports हो गया, political events हो गए, weather और crypto events हो गए. ऑलराइट. एग्जांपल्स क्या है? स्पोर्ट्स बाजी,
Probo, MPL, Opinio, no, all these things, Real 11, Player Sports, all these are examples of the opinion trading platforms. तो यहाँ पे opinion trading platforms are not regulated by the SEBI. लाइक बिकॉज जो भी आइटम वहां पे ट्रेड हो रही है दैट इज नॉट क्लासिफाइड एज अ सिक्योरिटीज अंडर द इंडियन लॉ राइट बट देर हैज बीन अ ह्यूज पेनिट्रेशन ऑफ दीज ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स तो इनका जो नो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम था दैट वाज ₹50,000 crore a year राइट वेयर यूजर बेस कितना है अराउंड 5 crore people that is why no seeing this gravity SBI has cautioned the people. The opinion trading sector is regulated across country in the countries like US, UK and Australia. These are regulated there, but India में ऐसा अभी regulation नहीं आया है. Right? So these are opinion trading platform. Another important news is related with gold monetization scheme where the government has said that the medium term and the long term government deposits under the uh, gold monetization scheme will be discontinued. तो discontinuation की जो बात है that is why this scheme has become important. So gold monetization scheme. So Ministry of Finance has announced to discontinue medium and long-term deposits under the gold monetization scheme. So जो medium और long-term deposits है, नो वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगी कब से मार्च 26-25 से राइट तो बट द बैंक्स में कंटिन्यू द शॉर्ट टर्म गोल्ड डिपॉजिट है जिसपे बैंक दिख रहा है दे मे कंटिन्यू शॉर्ट टर्म गोल्ड डिपॉजिट्स वेयर ड्यूरेशन इज टेन्योर इज 1 to 3 years राइट तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की सब थोड़ी फ्यू थिंग्स विच यू शुड नो इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 राइट तो गोल्ड मोनेटाइजेशन का मेन इशू क्या था कि इंडिया में बहुत लोगों के पास गोल्ड पड़े रहते हैं तो गवर्नमेंट वांटेड टू मोनेटाइज इट ऑलराइट रादर देन बाइंग द न्यू गोल्ड बिकॉज इंडिया इज नो टोटली डिपेंडेंट ऑलमोस्ट 90% आप कह सकते हो गोल्ड जो इंपोर्ट होके आता है ऑलराइट तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम कोई ऐसी स्कीम निकाल लें जिसके लोगों के पास जो गोल्ड पड़ा है जो आइडल पड़ा हुआ है ज्वेलरी सारी पड़ी हुई आइडल पड़ा हुआ है उसको थोड़ा प्रोडक्टिव बना लिया जाए उसी के लिए इन्होंने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाया था ऑलराइट एंड देन it will help in reducing the country's reliance on import of gold and also help in reducing the current account deficit because India में almost 90% जो गोल्ड होता है वो इंपोर्ट हम कर रहे हैं ऑलराइट तो इसकी वजह से ही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हम लाए थे कि लोगों के जो आइडल पड़े हुए गोल्ड है उनको यूज में लाएंगे और अपना जो गोल्ड के रिलायंस है जिसपे हम इंपोर्ट काफी कर रहे हैं उसको रिड्यूस करेंगे और करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करेंगे लाइक तो 3 कंपोनेंट्स थे इसके फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट टेन्योर इज 1 to 3 years मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट टेन्योर इज 5 to 7 years एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट जहां पे टेन्योर इज 12 to 15 years तो अभी जो डिसकंटिन्यू हुआ है इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड दिस हैज बीन डिसकंटिन्यूड ये अभी बैंक्स आर अलाउड अब आपको करना है तो करते रहिए यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट जो थी तो मिनिमम डिपॉजिट वाज 10 ग्राम ऑफ रॉ गोल्ड 10 ग्राम था मिनिमम मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं थी ऑलराइट इंटरेस्ट रेट कैसे था ऑलराइट तो फॉर शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट्स इट वाज डिसाइडेड बाय द बैंक्स ऑलराइट शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट्स कर रहे हो आप अगर जीएमएस में तो इंटरेस्ट रेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक्स डिपेंडिंग अपॉन की करंट सिचुएशन क्या चल रही है गोल्ड प्राइसेस क्या चल रही है डिफरेंट फैक्टर्स को एक्नॉलेज करते हुए दे वर ट्राइंग टू कम आउट विद द इंटरेस्ट रेट अगर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहां पे हु वाज डिसाइडिंग द इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट वाज डिसाइडिंग द इंटरेस्ट रेट तो ये थोड़ी सी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि जब आप वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड मोनेटाइजेशन तो ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो डिसकंटिन्यू हो रही है अर्लियर गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि डिसकंटिन्यू कर रहे हैं इशुएंस ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इसको भी बिकॉज प्राइसेस ऑफ गोल्ड हैज इंक्रीज टू मच तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी डिसकंटिन्यू कर दिया है सरकार ने सो दिस इज देयर एंड नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है alternative investment fund so this has
I know experts are saying that it will gain more traction in India in the coming years. It has gained traction, but in the coming years, it will also gain more traction. ठीक है, तो क्या क्या कुछ कुछ चीजें बात कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की. सो बेसिकली दीज आर, यू कैन से, एक फंड बनाया जाता है विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. ऑलराइट, एक फंड इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में. ऑलराइट, और फंड में कहाँ आता है, उसमें प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल से पैसे आते हैं. दैट इज व्हाट द आइडिया. तो आप एक फंड बना रहे हो विच इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. उस फंड में पैसे कौन लगा सकता है, इन्वेस्टर्स कौन पैसे लगा सकता है, आइदर इंडियन इन्वेस्टर्स भी पैसे लगा सकता है और फॉरेन इन्वेस्टर्स से भी पैसे आप ले सकते हो. ऑलराइट, दैट इज व्हाट प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल. ऑलराइट, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल. और एआईएफ को रेगुलेट कौन करता है, सेबी. सेबी ने अपनी एक गाइडलाइन ला रखी है, सेबी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012, एंड थ्रू दैट इट रेगुलेट्स द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. ठीक है, आप जो फंड इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, जो आईएफ इनकॉर्पोरेट कर रहे हो इंडिया में, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, that can be in the form of company, or that can be in the form of limited liability partnership. किसी भी फॉर्म में हो सकती है जब when you're talking about alternative investment fund. अब अगर आप जो पूल कर रहे हैं फंड, उसमें जो आप लेट्स से डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर से पूल करा रहे हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 1 करोड़. मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 1 करोड़. ठीक है, बट फंड मैनेजर, एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स, दे कैन स्टार्ट विथ 25 लाख. तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि मिनिमम अमाउंट नीडेड इज 1 करोड़. ऑलराइट, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एआईएफ, मिनिमम अमाउंट इज 1 करोड़. जो हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड, देन पीएमएस, देन एआईएफ, तो वहाँ पीएमएस में 50 लाख हम बात कर रहे हैं. देन एआईएफ की जो हम बात कर रहे हैं, तो दे वी आर सेइंग 1 करोड़. The number of investors is capped at 1000 per schemes. जो आप एक फंड बनाओगे, डिफरेंट इन्वेस्टर्स आएंगे, उसमें 1000 पर स्कीम पे कैप्ड है. बट अगर वो एंजल फंड है तो 49 पे ही वो कैप्ड है. तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखो when we are talking about alternative investment fund. राइट, टाइप्स क्या है, 3 कैटेगरीज है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3. राइट, तो कैटेगरी 1 इज बेसिकली those who invest in startups, early stage startups की बात कर रहे हैं, early stage ventures की बात कर रहे हैं. Alright, which are startups which are catering to socially or economically desirable things. Alright, तो वहां पे हम बात कर रहे हैं, वो कैटेगरी 1 की बात होती है. इसमें कौन कौन से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेंचर कैपिटल फंड, एंजल फंड, SME funds, social venture funds, all those things funds are coming under category 1. Alright, कैटेगरी 2 में क्या होता है, कैटेगरी 2 में वो आते हैं जो ना कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 में आते हैं. Those are classified as कैटेगरी 2. Alright, यहाँ पे क्या एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट फंड्स, डेट फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ कैटेगरी 2 फंड्स. ठीक है, ये सारी लोगों चीजों का कैटेगरी 2 फंड्स में आता है. कैटेगरी 3 थोड़ा बहुत हाई रिस्क की है. दे आर फंड्स विच एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज. ऑलराइट, तो दैट इज व्हाट द आइडिया. यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेज फंड्स है एंड पाइप फंड्स है. पाइप मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी. तो ये ध्यान रखेंगे, हेज फंड्स एंड पाइप आर कैटेगरी 3. कैटेगरी 3. ऑलराइट, तो बहुत ही रिस्की कैटेगरी रहती है ये कैटेगरी 3. So that is what the idea. So category 1, category 2 and category 3. Sometimes they may ask, this type of alternative funds comes under which category. तो यहाँ पे ये ध्यान रखना. Right, so in this session, these are some of the important news which we went together. So I believe that this session might have added certain value in your preparation. So I will see you in the next video. Thank you.